Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni. So today we are going to take up another topic in the chapter series of mass spectrometry. So far we have discussed about the sample introduction, the principle of mass, the ionization methods. 4 ionization methods we have discussed. Then all the 4 are very important, let me tell you, because questions could be asked from your chemical ionization, electron ionization, electrospray, then your desorption technique. So they all the 4 are very important. You cannot plan on skipping them for if you are going to appear for a subjective paper for your university or college, right? Then comes your analyzer technique. So we are going to see the basic summary of all those things as of now over here, and it is something like this. I have taken the very simplest diagram for this as of now. So from the sample injector, what you are going to do is to inject the sample into the vaporization chamber, where if the sample is in the solid state, it can get first of all converted into the gaseous state. Okay, only then your mass spectrometer is going to work, because it takes up only gaseous sample. Okay, then after getting converted into the gaseous phase, what is going to happen? The molecule is going to get converted into the molecular cation, or it could be known as molecular radical cation, the positive cation, like this. Okay, these are then passed to the negatively charged accelerating plates and then to the mass analyzer, to which the various fragments like F1, let's just say F2 positive, F3 positive, F4 positive, they are separated as by the mass by charge ratio from the mass analyzer, and therefore they will get detected by the detector. So this is the basic general principle of mass spectrometry, and now we are going to see the simulation of the same for your better understanding. Alright, so with the help of this virtual simulation, we are going to see the working and principle of mass spectrometry. First of all, this is a sample beaker जिसमें आप अपना sample लोगे, and this is a mass spectrometer जिसमें आप अपना sample सबसे पहले load करोगे, फिर आगे का process होगा. तो ये हमने ले लिया sample injector, इसमें inject कर लिया sample को और load कर दिया अपने mass spectrometer में. नाउ प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे देखेंगे. आपने इसको इंजेक्ट कर दिया सैंपल को, देन उसके बाद वेपराइजेशन चैम्बर में वेपराइज हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल बन गए. कैसे? बाय द बम्बार्डमेंट विद हाई बीम ऑफ हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. देन ये जो पॉजिटिवली रेडिकल केटाइन बने हैं, ये आपके एक्सेलरेटिंग प्लेट से होते हुए, मास एनालाइजर से होते हुए, अपने मास बाय चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग सारे के सारे फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे. समझ आई बात? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर राइट नाउ. उसके बाद एंड में जब डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिए फ्रेगमेंट्स, उसके बाद जो आपके पास प्लॉट बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा. ठीक है बच्चे? और जो इसमें आपके पास y एक्सिस पे है, दैट इज द रिलेटिव अबंडेंस, एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव द मास बाय चार्ज वैल्यू, एंड द टॉलेस्ट पीक इन द स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटिंग द बेस पीक. ओके, एंड द वन जिसकी आपके पास मास बाय चार्ज वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो पीक होगी आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना इन दो टर्म्स को. मॉलिक्यूलर आयन पीक और बेस पीक दोनों अलग अलग है, सेम नहीं होती. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग ओवर हियर, राइट. आपने वर्चुअल साइमुलेशन में देखा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का अल्टीमेटली काम क्या है, टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मास बाय चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स को सॉर्ट करता था आपका पूरा का पूरा मास स्पेक्ट्रोमीटर. सो basically you are determining the molecular formula of the given sample. So there are two methods of determination. First one is your precise mass determination and another one is your isotopic peaks. So first of all we are going to take a precise mass determination, and it is very important application. मैं आपको बहुत simple way में समझाने वाली हूँ यहाँ पे. Let's see this particular table. सिंपल सी बात है, आपके प्रिसाइज मास डिटर्मिनेशन में आपके लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर और हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर का कंपैरिजन किया है. दैट्स इट. कि जितने भी आपके ये मॉलिक्यूलर आपके पास फॉर्मूले देखने को आपको मिल रहे हैं, दे विल बी, इन केस ऑफ योर लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर विल बी गिविंग यू मॉलिक्यूलर वेट इन द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 60.1 ग्राम पर मोल. तो अगर सभी की ये वैल्यू आएगी 60.1 ग्राम पर मोल, आपके मास स्पेक्ट्रोमीटर से आपको ये मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया. ठीक है, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि इनमें से किसका पर्टिकुलर, इनमें से किस वाले फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर वेट है? यू कैन नॉट टेल दैट. एंड इसीलिए इसकी ड्रॉबैक की वजह से हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर की एडवांटेज यहाँ पे आई कि ये आपका एज कंपेयर टू दैट ऑफ लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट विल बी शोइंग द प्रिसाइज और एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट वैल्यू of each of the molecular formula as mentioned over here, and therefore will be able to differentiate among these four.
So that is all about it. यही आपके प्रीवियस स्लाइड में भी मेंशन है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर का, इज द डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी एक्यूरेट और प्रिसाइज molecular weight of the substances. And depending on the atom contained in a molecule, it is possible for a particle of same nominal mass to have slightly different masses when precise determination is possible. For example, ये अभी हमने जो पीछे केस देखा, that is the example in this particular case. So that is all about the precise mass determination. बहुत सिंपल सी चीज है. लो रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे वेरियस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से किसका आपके पास 60.1 मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेकिन वही अगर आपके पास प्रिसाइज वैल्यू होगी उसकी तो आप बता सकते हो कि भाई C3H8O के लिए आपके पास 60.05754 वैल्यू है और 60.06 वाला केस होगा वो होगा C2H8N2 का, एंड लाइक दैट यू कैन डिफरेंशिएट. ओके, so the parent ion formed by the loss of one electron from a molecule is known as molecular ion. Let's just say that this is the molecule, this is the sample into concentration. जब आप इसे bombard करवाओगे high energy electron beam से तो क्या होगा, it will strip off one electron from the metal. ठीक है, एंड लाइक दिस इट विल कम आउट. तो एक इलेक्ट्रॉन लेके लाइक दिस यू कैन राइट डाउन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो दो इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एक यहाँ से और एक इसका जो इसने निकाल लिया, एंड अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा M प्लस. या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, M रेडिकल केटाइन. ओके, so this is your molecular ion or parent ion. The corresponding peak related to this would be known as parent peak or molecular ion peak. And the value of mass by charge of the molecular ion gives the molecular weight of the compound. बेटा देखो सिंपल सी चीज है, आपके पास M प्लस जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप होने के बाद ये जो आपके पास केटाइन बना है, it is always going to remain 1 plus only, and if it is going to be like that, मतलब आपके पास मास क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा आपके पूरे सैंपल का, और चार्ज हमेशा आपके पास अगर 1 ही वैल्यू दे रही है तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर वेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mass of the fragment molecular ion. Understood? So the molecular weight of the compound is going to be giving mostly is going to be equal to the molecular ion of the substance given fragment. जो भी आपका molecular ion है उसका, sorry not fragment, molecular ion. Molecular weight would be equal to the molecular ion weight. Okay, so that is one thing over here. So the most abundant ion formed in the ionization chamber, it gives rise to the tallest peak in the mass spectrum, which is known as the base peak. तो आपके पास इस तरीके से जो mass spectrum आपको मिलता है, where x-axis has mass by charge value and your y-axis has relative abundance. जो भी इस spectrum में सबसे tallest peak होगी, that would be known as your base peak. So मतलब जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी, जिस आयन की जो मोस्ट अबंडेंट होगा आयनाइजेशन चैम्बर में, इट विल गिव राइज टू द टॉलेस्ट पीक एंड अल्टीमेटली इट इज नोन एज द बेस पीक, राइट? सो दैट इज वन थिंग. सो आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज नोन एज पेरेंट आयन. ये मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया है, समथिंग लाइक दिस, एंड इट विल एंड अप फॉर्मिंग दिस रेडिकल केटाइन, और जिसे आप बोलोगे मॉलिक्यूलर रेडिकल केटाइन या फिर मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, लाइक दैट. So the molecular ion has weight equal to the molecular weight of original molecule. That also we have discussed in the previous slide. So the very first information given by, तो मतलब क्या है कि अगर आपको molecular weight चेक करना है तो आपको molecular ion की peak कौन सी आई है, कहाँ आई है आपके mass spectrum में, that you should be able to recognize. Okay, that is the first information you are going to get from the mass spectrum, is that molecular weight determination. Okay, then when the mass spectrum shows peak in the molecular ion region separated by mass difference between either 3 and 15, either a mixture is present or neither represents the molecular ion. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्पेक्ट्रम जो पीक शो कर रहा है इन द मॉलिक्यूलर आयन रीजन, लाइक अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर आयन इस तरीके से है और एक और फ्रेगमेंट आपके पास फ्रेगमेंट आयन के बीच में जो डिफरेंस है, इट इज आइदर द डिफरेंस ऑफ 3 और 15. ठीक है, इट इज आइदर द डिफरेंस ऑफ 3 and 15. तो वो आपके पास क्या हो सकता है, मतलब आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास या तो मिक्सचर प्रेजेंट है या फिर इन दोनों में से कोई भी डेफिनेटली मॉलिक्यूलर आयन की पीक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. या तो वो मिक्सचर होगा या तो फिर मॉलिक्यूलर आयन तो होगा ही नहीं. दैट इज वन थिंग. सो द टू पीक्स डिफरिंग बाय 3 यूनिट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ अल्कोहल, व्हिच इज too easily to be fragmented to yield observable ion peak.
मॉलिक्यूलर आयन पीक. अंडरस्टूड? तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात की है, इन्होंने दो पीक्स एज्यूम कर ली है. एक आपकी हो गई M-15 और एक पीक होगी आपकी M-18. ठीक है, जिन दोनों में जो डिफरेंस है आपस में, दैट इज ऑफ 3 यूनिट्स. अंडरस्टूड? सो ये इन्होंने बात की है दैट टू पीक्स डिफरिंग बाय 3 यूनिट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय आइदर द लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप के लॉस से आप कैसे बोल सकते हो कि M-15 आया, कि मान लो तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें से मिथाइल ग्रुप निकल गया इस तरीके से, तो मतलब मिथाइल का पूरा मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास चेक करो, 12 फ्रॉम कार्बन एंड 3 फ्रॉम हाइड्रोजन विल गिव यू 15. So that is how they have written M-15. Okay, and similarly is the case of your H2O. 16 plus 2, 18. So like that, M-15, M-18. तो ये दो पीक्स इन्होंने मान लिए कि आपके किसी एक पूरे कंपाउंड में से अगर आपका एक साइड से मिथाइल निकल गया, वाटर निकल गया, तो उन दोनों की अगर पीक्स आती हैं तो वो 3 की यूनिट से डिफरेंस शो कर रही होंगी आपके. ठीक है, ये चीज इन्होंने बात की है यहाँ पे. दैट इज इट. बट ये चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी व्हाइल वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक फ्रेगमेंटेशन इन डिटेल. आपको वहां पे ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये बात एग्जैक्टली हो कैसे रही है, हम कैसे अल्कीन्स के केस में, अल्कीन्स के केस में कैसे हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखते हैं, वो सब समझेंगे वहां पे. इट इज वेरी इजी बट ओके वेट. हाँ, so it is quite easy to understand, not that difficult, and you don't have to just panic around it and think that हाँ ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है. It's very easy. So I hope this particular thing is quite clear to you. And चलते हैं अब आगे. So as I said that mass spectrometry is very powerful analytical technique. क्योंकि ये क्यों है इतनी powerful analytical technique? क्योंकि आप यहाँ से आप पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हो, प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर सकते हो. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मास स्पेक्ट्रम इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीक्स व्हिच देयरफॉर इंडिकेट द मास ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स. अभी तक हम ये चीजें बहुत बार देख चुके हैं. दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन ऑफ योर मॉलिक्यूलर आयन, राइट? सो टू सच पीक्स दैट आर ऑफन ऑब्जर्व्ड इन द मास स्पेक्ट्रम आर बेस पीक एंड मॉलिक्यूलर आयन पीक. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि आपके बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने बेस पीक को ही मॉलिक्यूलर आयन की पीक मान बैठते हैं. एंड दिस इज नॉट द केस. रिमेंबर, दिस इज नॉट द केस. बेस पीक याद रखो तुम्हारी स्पेक्ट्रम की टॉलेस्ट पीक होगी जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा हाई होगी. ये चीज याद कर लो सबसे पहले. ठीक है, देन अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक को आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो. सो द टू मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम as we said, base peak and molecular ion peak. Base peak is going to be the most intense and most tallest one in the mass spectrum and it represents the most abundant ion, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया. And this ion is usually formed by the fragmentation of molecular ion or other ion present in the spectrum. तो बेस पीक आपके पास जैसे मॉलिक्यूलर आयन की फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगी, जो आपके पास फ्रेगमेंट आयन्स बनेंगे उसमें से कोई ना कोई एक फ्रेगमेंट आयन की जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी. मान लो कि आपके F4 की अबंडेंस 100% है, तो इस F4 वाला जो होगा स्पेक्ट्रम में F4 की पीक सबसे टॉलेस्ट होगी. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन द केस ऑफ बेस पीक, राइट? ओके. So base peak can help in the identification of compound and it can be used to quantify the amount of compound present in the sample. तो बेस पीक के थ्रू आपको एक अंदाजा हो जाता है कि आपके पास कंपाउंड में टोटली मतलब आपका कितना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट एक सैंपल में, एक पर्टिकुलर सैंपल में उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो आपको अंदाजा हो जाता है वहां से. एंड इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग द मॉलिक्यूलर मास. ऑन द अदर हैंड, अब हम अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द आयन दैट हैज हाईएस्ट मास बाय चार्ज रेशियो. कई बुक में M/E लिखा होगा, कई बुक में M/Z, बोथ आर करेक्ट. ओके, एंड दे कॉरेस्पॉन्ड टू इंटैक्ट मॉलिक्यूलर आयन ऑफ द कंपाउंड. दैट इज वन थिंग अबाउट इट. तो क्या बता रहा है आपको मॉलिक्यूलर आयन पी? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा आयन जिसकी सबसे ज्यादा मास बाय चार्ज वैल्यू होगी. ठीक है, and therefore it will be relating to the and corresponding to the molecular ion of the compound. Now, this peak is formed when molecule is ionized by losing or gaining an electron, but without undergoing any fragmentation. वो पहला ही स्टेप जो होता है आपके पास कि आपने सैंपल को बम्बार्ड किया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, वो स्ट्रिप ऑफ हो गया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन. दैट इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन टेक्स प्लेस. तो इसकी अभी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, बट जब मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन होती है उसमें से कोई एक फ्रेगमेंट ऐसा होता है जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है. दैट फ्रेगमेंट आयन विल गिव यू
the tallest peak and therefore the base peak. समझे? तो ये difference है इसका. In summary, you can say that the base peak and molecular ion peak are different in terms of their intensity and the information they provide about the compound. Now, the base peak is used for identifying and quantifying the compound, while the molecular ion peak is used for the determination of molecular weight and confirming the identity of the compound. So, I hope the difference between these two is quite clear to you. Now, you can see in this case, further some important concept related to the molecular ion is over here. That molecule in nature do not occur as isotopically pure species. अब देखो आपके पास molecule अगर मान लो उसमें कार्बन है तो कार्बन में नेचर में सबसे ज्यादा C12 अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि C13 और C14 है ही नहीं नेचर में, होता है, इसकी भी प्रेजेंस होती है बट अबंडेंस उसकी नेचर में कम है. तो आइसोटोपिकली प्योर स्पीशीज कोई भी मॉलिक्यूल आपका नहीं होता. ठीक है. सो वर्चुअली ऑल द एटम्स हैव हेवियर आइसोटोप लाइक दिस, and that can occur in the characteristic natural abundance. So relative abundance is always going to be directly proportional to the abundance of isotope. जो नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा उसकी ही abundance सबसे हाई होगी. समझे? That is one thing. So isotope of hydrogen में सबसे ज्यादा प्रोटियम आपके abundant है और in case of your carbon सबसे ज्यादा आपका C12 abundant है. Abundance यहाँ पे given है, आप नोट डाउन कर सकते हो. Okay. And there are many instances when a molecular ion peak is not recorded or is of very low abundance. Instead, a peak corresponding to mass by charge of m+1 is observed. अब कई केसेस ऐसे होते हैं कि molecular ion की peak आपको देखने को ही नहीं मिलेगी. Instead आपको m+1 यानी कि जो molecular weight है उसमें +1 ऐड कर दो, उसकी peak आपको देखने को मिलेगी. And वो दो केसेस में आपके पास होता है. It occurs in the spectrum of esters, ethers, amine. हम देखेंगे इनको आगे चल के डिटेल में. And it is due to the ion molecular reaction. So it is basically due to oxonium and ammonium type ion being formed. So these are the two cases. First is a certain compound also give m-1 peak due to loss of hydrogen, and that will be given in the case of aldehyde specifically. And aromatic compound give rise to abundant molecule ion peaks because of the presence of pi electron system. So far in this case of molecular ion, we have discussed about the difference between molecular ion peak as well as the base peak. What is molecular ion peak exactly, and what are molecular ions? Those all the things that we have taken up into this particular slide. So अब ये जो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड और आपके जितने एस्टर अमीन की बात की है, ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे इनकी, तो वहां पे आपको ये चीजें बहुत डेप्थ में क्लियर हो जाएंगी. As of now, you need to remember what is molecular ion peak and base ion peak. So there are some important features related to molecular ions that you can see over here. The relative abundance of molecular ion peak decreases in the order mentioned below. So this is the order. सबसे ज्यादा अबंडेंस होगी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर आयन की पीक जो होगी उसकी, यानी कि इसके केस में मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत हाई होगी. ठीक है. वही आपके अल्कोहल की बात करें तो उसकी उतनी ही अबंडेंस लो होगी. किसकी? मॉलिक्यूलर आयन की. क्यों? क्योंकि उसका लाइफ टाइम इन केस ऑफ अल्कोहल एज कम्पेयर टू एरोमेटिक इज वेरी लेसर, विच इज व्हाई द पीक इज क्वाइट लोअर. Understood? The peak is quite lower as the abundance is lesser. So ये आपका एक पूरा का पूरा आपके पास चार्ट है जो आपको याद करना है. As of now आप सिर्फ एरोमेटिक और अल्कोहल का याद रख सकते हो और बीच में आपको ये भी याद करने ही होंगे. लाइक अल्कीन्स आ गया, उसके बाद कंपाउंड्स के बाद फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, सल्फाइड, मेरकैप्टेन्स, ketone, amine, esters, ethers, carboxylic acid. These are what you need to remember. Then in case of branched hydrocarbon, that will involve your alkanes and all saturated hydrocarbons like that. So ये तो होगी एक चीज. अब जो रिलेटिव अबंडेंस है किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द hydrocarbons which is having single bond in it, not multiple bonds. So the relative abundance of saturated hydrocarbon is more than the corresponding branched chain compounds with the same number of carbon. अब ये याद रखो कि आपके पास जो relative abundance है किसी भी saturated hydrocarbon की, वो उसी के corresponding branched chain compound की with the same number of carbon ज्यादा होगी. ठीक है. मतलब आपके पास लीनियर चेन की abundance ज्यादा होगी as compared to branch chain. This is what they have mentioned. So मतलब अल्टीमेटली अगर उसकी abundance यहाँ ज्यादा बता दी उन्होंने तो मतलब मॉलिक्यूलर आयन उसकी जो होगी उसकी पीक भी ज्यादा होगी.
ठीक है. So absence of molecular ion peak in the mass spectrum, it means that compound is either बहुत ही ज्यादा वो branched है या फिर वो tertiary alcohol है. ये आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास molecular ion peak देखने को मिलती ही नहीं है, कि अगर आपको पता लग जाएगा ना molecular ion peak है, कैसे पता लग जाएगा कि अगर मान लो आपका ये alcohol है, this is your alcohol. Let me change the color of the pen. Now oxygen has 2 lone pair of electron. इसके ऊपर जब आप बम्बार्ड करोगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन बीम को, तो ये बीम क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप ऑफ कर देगी इस मॉलिक्यूल से, लाइक दिस, एंड इट विल एंड अप फॉर्मिंग दिस रेडिकल केटाइन, और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो बाहर निकल गया. ठीक है, तो ये आपके पास बन गया रेडिकल केटाइन. तो मतलब क्या है, यहाँ पे यही बोला है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की पीक, यानी कि ये वाली पीक देखने को नहीं मिल रही है, अगर आपको जो मॉलिक्यूलर आयन आपके पास क्रिएट हुआ होगा, अगर उसकी पीक आपको देखने को नहीं मिलेगी, और वो आप पता लगा लोगे मॉलिक्यूलर आयन पीक के उस स्पेक्ट्रम को देख के, तो वो आपके पास केस होगा. उस केस में कंपाउंड आप अंदाजा लगा लोगे कि वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड है या फिर वो टर्शियरी अल्कोहल है. ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल दैट लुक्स लाइक दिस, something like this. Okay, clear? CH3 इसके तीनों तरफ आ गया, and this is your OH over here. So in case of primary and secondary alcohol, they give very small molecular ion peak. जब आप specifically alcohol का देखोगे ना फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, आपको ये चीजें वहां बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. And in case of chlorobromo compound, isotopic peaks are also formed along with the molecular ion peak. तो ये तो आपके पास अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की पीक्स आपको देखने को मिलेंगी. इन केस ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो कंपाउंड M+M+1 और M+2 पीक्स आर सीन, बट आपके पास क्लोरो और ब्रोमो में M+1 नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि आपका क्लोरो की बात करें तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द स्लाइड. ऑलराइट, सो इन केस ऑफ क्लोरो आपके पास एक आइसोटोप होता है 35 का और एक आइसोटोप होता है 37 का, तो मतलब डिफरेंस किसका है, 2 का. तो मतलब अगर इसको आपने मान लिया मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, ये M-2 होगी ये. ठीक है, समझ आ गई बात? सॉरी, M+2. ओके, 35 + 2 will give you 37. So that is how we have understood over here. So in the case of chlorobromo compound, M+ and M+2 peaks are formed in the ratio of 1:3 in case of your chloro compounds and 1:1 in case of ब्रोमो कंपाउंड. अब ये कैसे हुआ, ये हम आइसोटोपिक पीक से आइसोटोपिक क्लस्टर्स के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे. ठीक है, so another important points related to the same molecular ion is all the conjugated alkene, okay, just a second, right, all the conjugated alkenes, they give rise to doubly charged ions because of the presence of पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब आपके पास इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है, तो ये आपको डबली चार्ज जो है आपके पास स्पीशी देगा, लाइक दिस, एक तरफ रेडिकल एक तरफ आयन, इस तरीके से. दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. सो इट विल गिव यू अ डबली चार्ज स्पीशीज और because of the presence of pi electrons, and they have pi conjugated system, so it will ultimately give rise to more stable molecular ion as compared to the non conjugated system. अब जिस सिस्टम में आपके पास conjugation हो रही होगी, डबल सिंगल डबल, वो आपको ज्यादा स्टेबल आपका molecular ion देगा. that will be giving you more stable molecular ion, and this will not be giving you stable unstable molecular ion देगा ये आपको. ठीक है, it will not be giving you stable molecular आयन पीक. सो दैट इज वन थिंग. आपको ये चीज अल्कीन्स में याद करनी है. जब हम अल्कीन्स का भी फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, तो ये चीजें जो अभी आप एडवांस में पढ़ रहे हो ना अल्कीन्स के बारे में, आपने पीछे अभी अल्कोहल के बारे में देखा, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी की. प्राइमरी सेकेंडरी में आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक ज्यादा बड़ी नहीं होगी, और टर्शरी अल्कोहल और ब्रांच्ड के केस में आपके पास जो है मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने को ही नहीं मिलेगी. तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. देन जितने भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दे हैव द सेम स्टेबिलिटी by virtue of the fact that at least 2 bonds must be broken before the fragmentation can occur. Okay, so that is one thing over here कि उसकी स्टेबिलिटी उन्होंने ऑलमोस्ट हर साइक्लिक कंपाउंड की सेम मान ली है, क्योंकि आपको अगर फ्रेगमेंटेशन उसमें करनी है या फ्रेगमेंटेशन से पहले ही वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए वहां पे. ठीक है, एटलीस्ट 2 बॉन्ड टूट रहे होंगे बिफोर द फ्रेगमेंटेशन, देन देयरफॉर यू कैन से कि आप हाँ यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन कंटिन्यू हम कर सकते हैं. तो ये भी हम आपके साइक्लिक कंपाउंड्स में डिटेल में देखेंगे. देन कम्स मॉलिक्यूलर आयन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैविंग एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड
is more stable than the corresponding molecular ion containing functional group having no pi bond. सीधी सी बात है, जिस कंपाउंड में आपको पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के साथ देखने को मिल रहा है उसका मॉलिक्यूलर आइन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द वन जिसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप और कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं है. सिंपल. Okay, and as compared to your alcohol, the molecular ion peak of aldehyde is more abundant. तो ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए हैं ये बहुत यूजफुल होंगे आगे चल के आपके fermentation में. So do not skip them at all. So next is the most important topic, that is isotopic peak that we are going to take up into consideration. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है मीथेन के केस का. तो आप देख सकते हो मीथेन का, ये है आपके पास मीथेन का फॉर्मूला 12 plus 4 it is going to give you 16, but इसकी रियल पीक आती है हमारे पास 17 पे. ठीक है, a mass that is 1 unit higher than the molecular mass. तो ये आपके पास पीक, आपके पास अगर आपने इसको m मान लिया तो ये जो पीक 17 पे देखने को मिल रही है आपको वो m+1 आ गई. ठीक है, m+1 पीक मान लिया अब तुमने. अब एक तरीके से तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी, जो टॉलेस्ट पीक होगी बेसिकली वो आपकी बेस पीक होती है. ठीक है. So chemically your CH4 is a mixture of compounds containing variable isotopes of carbon and hydrogen. अब आपको नहीं पता ना कि कार्बन का आपके पास C12 है, C13 है या कौन सा आइसोटोप है. वही हाइड्रोजन, आपने पहले कार्बन के आइसोटोप चेंज कर लिए, फिर आपने हाइड्रोजन का एक आइसोटोप चेंज कर लिया, उसकी जगह ड्यूटेरियम लगा दिया. तो आपको नहीं पता अभी कि कौन सा है, तो हमने तीनों केस लेके देख लिया और उनका मास बाय चार्ज निकाल के देख लिया तीनों केसेस में. तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ ईच, आई होप आपको मास बाय चार्ज समझ आ रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ. दैट इज 12 plus 4 16. 16 इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, न्यूट्रल है, तो 16 बाय मतलब चार्ज कोई नहीं आएगा, 16 by 1 एज सच. तो ये आपके पास उसी तरह बाकी केसेस में भी किया हुआ है. ठीक है. So that is one thing over here. Charge is unity over here in these three cases. So which is why the mass by charge ratio is same as that of molecular weight. और ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं. तो अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोपिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल अबंडेंस. सीधी सी बात है कि नेचर में जो सा आपका आइसोटोप सबसे ज्यादा अबंडेंट है उसकी, उस पर्टिकुलर आइसोटोप की अमाउंट उतनी ही ज्यादा आपको कंपाउंड में देखने को मिलेगी. ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, जस्ट अ सेकंड, या ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर टेबल यू कैन सी द केस ऑफ हाइड्रोजन. आपके पास हमने यहाँ दो आइसोटोप देख लिए हैं, H1 प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम. एग्जैक्ट मास उसका गिवन है और वो हमारे अभी काम की नहीं है, हमने अबंडेंस देखनी है. तो प्रोटॉन आपके पास नेचर में 99.985% अबंडेंट होता है, वहीं जो आपका ड्यूटेरियम है वो 0.015 ही होता है. तो यहाँ से आप देख लो कि जिसकी आपके पास आइसोटोपिक पीक किसकी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी आपके पास अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी. तो वही बात इन्होंने पीछे बोला है स्लाइड में यहाँ पे कि amount of each isotopic compound is directly proportional to the natural abundance of the isotope involved. Okay, so ये आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, सिलिकॉन के, फास्फोरस के, सबके आइसोटोप्स अलग अलग गिवन है और उनकी अबंडेंस भी गिवन है. सो you should make a proper नोट रिलेटेड टू दिस. आपको हाइड्रोजन का तो पता ही होना चाहिए और कार्बन का भी पता होना चाहिए. ठीक है, इतना तो आप कर ही लो याद, और सिलिकॉन का भी कर लो. व्हाई एम आई सेइंग अबाउट सिलिकॉन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. चलो, देन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल ऑफ देम हैव देयर हैवियर आइसोटोप. जैसे कि हमने पीछे बोला. अब हमेशा ये याद रखो कि जो लाइटर आइसोटोप होगा ना वो प्रीडोमिनेट करेगा हेवियर आइसोटोप का. क्यों? क्योंकि लाइटर आइसोटोप की जो अबंडेंस है नेचर में वो बहुत ही ज्यादा होती है. लाइटर आइसोटोप की अबंडेंस अगर नेचर में ज्यादा है तो लाइटर आइसोटोप अल्टीमेटली डोमिनेट कर जाएगा आपके हेवियर आइसोटोप को. ठीक है, समझ आ गई ये चीज. देन ऑलवेज टेक द एलिमेंट्स टू डिटरमिन लाइटर एलिमेंट टू डिटरमिन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रम. ओके, एंड इन दिस केस ऑफ हेवियर क्लोरीन एंड ब्रोमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर रेशियोज. उनकी रेशियो क्या आ रही है आपके पास, इंटेंसिटी रेशियो क्या आ रही है वो हम देखेंगे. ठीक है, करेक्ट, वो अभी हमने पीछे भी देखा था, अभी हम डिटेल में इसके बारे में ही देखने वाले हैं. सो या ओके, सो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपका M मान लिया आपने. द पीक ऑफ लाइटर एलिमेंट आपने उसको मान लिया कि लाइटर आइसोटोप का जो है पीक वो M से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको आपने मॉलिक्यूलर आइन पीक मान लिया ड्यू टू लाइटर आइसोटोप. अब दो पीक और पॉसिबल है, M+1 M+2 बिकॉज ऑफ द हेवियर आइसोटोप. कैसे? क्योंकि कार्बन के केस में C12 अगर आपका है, फिर C13, फिर C14. तो यहाँ देखो, यहाँ हो रहा है आपके पास M+1
ठीक है. See, molecular ion peak is not the peak always going to be that of higher mass by charge value, but mostly केस आपके पास यही वाला होगा, तो आप कंफ्यूज मत हो. अगर आपके पास मास बाय चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम किसी की प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, तो वो यूजुअली मॉलिक्यूलर आयन पीक से कर सकते हो, बट समटाइम्स देयर आर द एक्सेप्शंस जहां पे ये केसेस नहीं होते. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओवर हियर. अब इन तीन एटम्स के केस में क्या होगा, इन तीन हायर आइसोटोप्स के केस में क्या होगा, इनके केस में आपके पास हमेशा जो प्रेजेंस होगी एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स की किसी भी कंपाउंड में, वो क्या करेगी, स्मॉल आइसोटोपिक पीक आपको देगी नॉर्मल आइसोटोप के कंपैरिजन में. मतलब आपका जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है 12 है, C12, तो C13 आपको इसके साथ शॉर्ट में इतनी पीक इसको साथ में देखने को मिलेगी. C14 की इससे भी छोटी होगी, क्योंकि इसकी अबंडेंस जैसे जैसे बेसिकली अबंडेंस डिक्रीज हो रही है आइसोटोप की, वैसे वैसे उसकी पीक की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है. So that is one thing over here. So the presence of this element in the compound will give rise to small isotopic peak, one mass greater than the molecular ion peak, and which is why M+1. The cases are given over here: N14 to N15, and H1 to H2, and C13 to C12 to C13, and so on. So in the case of compounds like sulfur, chlorine, bromine, silicon, and iodine, the heavier isotope unit will have two mass unit greater than the lighter isotope. That is, it is going to give you M+2 peak. क्लोरीन और ब्रोमीन का केस हमने देख लिया अभी. ठीक है. मास आप देखो, इसका मास का इंक्रीज जो है वो M, अगर इसे आपने M मान लिया तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन दिस केस, राइट. तो इस दोनों केसेस में ऐसा है आपके पास. सो वी विल गेट अ नंबर ऑफ पीक ड्यू टू हेवियर आइसोटोप. दैट पीक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन क्लस्टर, और उसे आप बोलते हो आइसोटोपिक पीक. सो मास अबंडेंस पे डिपेंड करेगी कि कितनी इंटेंसिटी होगी पीक की. ये मैंने अभी पीछे आपको बताया. ठीक है, कि कितना आपके पास एक मास स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है जिसकी अबंडेंस नेचर में सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी अबंडेंस नेचर में कम है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. समझिए. सो दिस इज हाउ यू शो. So the natural abundance in carbon, nitrogen, hydrogen is very low, and that is the case of the heavier isotope. Heavier isotope of carbon, nitrogen, and hydrogen is very low, and its peak is quite negligible. But still, in the case of your sulfur, chlorine, bromine, silicon, the heavier isotopic peak is still visible, as compared to that of these three. बिकॉज उसकी इंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल आइसोटोप के ऑलमोस्ट बराबर होती है, तो इसलिए उसकी पीक आपको इक्वल इंटेंसिटी की इस तरीके से, जैसे ब्रोमीन आपका हो गया 79 एंड ब्रोमीन 81, उसकी इक्वल इंटेंसिटी की पीक इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है. तो अभी हम समझेंगे इसी को आगे. मान लो कि आपको कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ M+1 पीक, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ योर कार्बन एटम. कार्बन कौन से वाला, अब M+1 बोला है यहाँ पे, तो कार्बन कौन से वाला हो जाएगा यहाँ पे, विच वन? इन दिस केस इट वुड बी C13, राइट, एंड यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट विद इट्स नेचुरल अबंडेंस. Then number of hydrogen atom into 0.015, number of nitrogen into 0.37, number of oxygen into 0.04, and like that sulfur and silicon का भी. तो बेसिकली आपको ये सभी ऐड नहीं करने होते हैं जो आपका मॉलिक्यूल गिवन है. जैसे यहाँ पे मिथेन है, तो मिथेन में आपके पास हमने मान लिया M+1 पीक के लिए कैलकुलेट करनी इंटेंसिटी. तो M+1 मतलब कार्बन जो है वो नॉर्मल आइसोटोप होता है उसका 12, तो वो M वैल्यू है. तो M+1 कितनी हो जाएगी, C13. ठीक है, तो C13H4, राइट. तो इसके लिए आपको निकालनी है इंटेंसिटी M+1 की, तो वो आपके पास जो एटम है उसी का आपने कंसिडरेशन करनी है. ठीक है, तो 1 इंटू इसका कितनी थी अबंडेंस, 1.1. ठीक है, 1 क्यों कि मतलब आपके पास एक ही कार्बन एटम है यहाँ पे, प्लस कितने हाइड्रोजन एटम है 4, और इसका कौन सा, इसका भी आपने जो दूसरा M+1 वाला आइसोटोप है, यानी कि आपके पास एक तो था प्रोटॉन, दूसरा था H2, तो आपने H2 यहाँ पे यूज किया ड्यूटेरियम वाला. ठीक है, तो उसकी आपके पास आ जाती थी 0.015. इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ पे 1.17 आ जाएगा. तो जो गिवन क्वेश्चन है उसमें देखो कि सल्फर या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गिवन है या नहीं. अगर नहीं तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको ऐड नहीं करोगे यहाँ पे. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. एंड इन द केस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ M+2, द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी लाइक दिस: नंबर ऑफ कार्बन into 1.1 whole square divided by 200 plus number of oxygen into 0.2 plus number of sulfur into 4.4 plus number of silicon into 3.4.
So you can see in this case they have not considered the number of hydrogen isotope that is tritium because इसकी abundance तो आपके ड्यूटेरियम के कंपैरिजन में भी बिल्कुल ही ट्रेसेस ऑफ अमाउंट में होती है इसकी abundance नेचर में, मतलब एक बिल्कुल ही माइन्यूट, तो इसे आप निगलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस केस. स्पेसिफिकली यहाँ पे इथेन का केस लिया है पहले, और इथेन का आपके पास यहाँ पे मान लो कि ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट 30, तो एम वैल्यू आपने मान ली इसकी है. ठीक है, इसकी आपके पास आपने मान ली कि इसकी अबंडेंस मान लो ये 100% है कि आपके पास नेचर में जो C12 है और H1 है ये 100% है, हमने मान दिया यहाँ पे. ठीक है, तो अब दूसरा केस देखेंगे, यहाँ पे C2 में से एक आइसोटोप जो है वो C12 है और दूसरा C14 है, हाइड्रोजन अभी सेम है. उस केस में क्या आपके पास हो जाएगा, उस केस में आपके पास कुछ नहीं है, सेम ही रहना था, बस एक आपका इंक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास उसका कार्बन का. ठीक है, तो ये 31 हो गया. अब इस केस में मतलब ये m+1 की वैल्यू देगा m के कंपैरिजन में, तो m+1 के लिए आपने इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे अभी मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, उसको यूज करके आपके पास आ गई 2.89%. इसी तरह आपने ये तीसरे केस में भी देख लिया यहाँ पे, उस केस में आपके पास पीक आ जाएगी बेटा m+2 की, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते थे ये वाला, ये लगा के आपके पास ये इंटेंसिटी आ जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी. दिस आर द formulas related to the same. Okay, so I hope that is quite understandable to you. चलते हैं आगे. So there is no contribution, अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की कोई contribution नहीं होती है m+2 पीक के लिए, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन H3 ट्रिटियम की वैल्यू है वो अबंडेंस इसकी जो है वो बिल्कुल ही माइन्यूट है, तो आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हो, कंसिडर नहीं करोगे. ठीक है, इन द केस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिकॉज नेचुरल अबंडेंस इज मोर, तो उसमें क्या करोगे आप कंसीडर करते हो. तो अब देखेंगे कि कैसे आपके पास किस किस तरह की पीक्स m+2 m+4, क्योंकि वहां 2 का डिफरेंस है, तो आपके पास इवन पीक्स आपको देखने को मिलेंगे m+2 m+4 m+6 समथिंग लाइक दिस. तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे पीक्स आती है. अगर मान लो कि आपके पास किसी कंपाउंड में एक ही क्लोरीन है एक ही ब्रोमीन लगे, जैसे कि आपके पास ये केसेस है दोनों. ठीक है, क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन. तो इसमें आपके पास देखिए, if the molecule has one chlorine atom, we get 2 peaks because of its isotope. कि आपको थोड़ी पता है कि क्लोरीन का कौन सा आइसोटोप है, आप 35 को भी लेके देखो, 37 को लेके भी देखोगे, आप दोनों की पीक्स देगा वो. ठीक है, तो अगर आप मान लो CH3 Cl35 है, तो आपको पता है Cl35 जो है नेचर में 75% अबंडेंस होती है उसकी. ये आपको पीछे जो मैंने टेबल बताया था वो याद करना पड़ेगा. जो आपकी मेन मेन चीजें हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का याद कर लेना, आप हाइड्रोजन और कार्बन का याद कर लेना, इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, उनकी नेचुरल अबंडेंस जो उनके आइसोटोप्स के अलग कहाँ कितनी होती है वो आप याद कर लीजिएगा. देन यहाँ पे आपके पास है साथ में एक इसका कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर वेट, आप टोटल करके देख सकते हो 12 + 3 15 + 35, तो आपके पास 50 आएगा. ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे किया है, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आ गया 52 एंड ये 37 आपके पास इसका आइसोटोप आ गया, यानी कि ये m की वैल्यू देगा, ये m+2 की वैल्यू देगा, और इसकी Cl37 की नेचुरल अबंडेंस नेचर में जो है वो 25% है. तो इसकी इंटेंसिटी रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे आप इंटेंसिटी जो आपके पास अबंडेंस है उसको लिख लो, एंड इट विल बी लाइक दिस 25 फिगर, so 3:1. So 3:1 is going to be the intensity of m/m+2. I hope you have understood कि कैसे आया हो, ये मैंने सब आया है, ये मैंने सब यहाँ पे सॉल्व करके रखा, आप देख सकते हो. ठीक है, the next is this. Another example is of bromine. Br79 and Br81 we have taken. यहाँ पे भी आपका क्या होगा, डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो इनकी नेचर में अबंडेंस है Br79 और 81 की वो इक्वल है ऑलमोस्ट, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी आपके पास इस तरीके से इक्वल देखने को मिलेगी. तो दोनों केसेस में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलता है. अगर आपके पास किसी कंपाउंड में एक ही क्लोरीन और एक ही ब्रोमीन है, तो उसकी लाइटर और हेवियर आइसोटोप के केस में आपको कैसे आपको ग्राफ मिलेगा वो हम देखेंगे. देखो, क्लोरीन में तो आपका 75:25 से याद कर लो यहीं पे, तो मतलब 3:1 की मतलब आपके पास इंटेंसिटी इस तरह से आएगी कि जो आपके Cl35 है उसकी इंटेंसिटी जो पीक आएगी उसकी बहुत हाई आएगी क्योंकि अबंडेंस ज्यादा है, और जो Cl37 है उसकी पीक लोअर आएगी क्योंकि उसकी अबंडेंस कम है. लेट मी शो यू हाउ. ओके, वेयर इज, या दिस इज द केस m and m+2. तो यहाँ पे m की 75% अबंडेंस है तो उसकी पीक भी बड़ी है, इसकी 25% है तो उसकी पीक भी छोटी है. ठीक है, वही ब्रोमीन का देखो, m और m+2 की बिल्कुल इक्वल आपके पास इंटेंसिटी देखने को मिल रही है पीक की.
सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही ब्रोमीन और एक ही क्लोरीन है तो इस तरह का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं वापस से पिछली स्लाइड में। ओके, नो, अब इसी तरह से आप अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा ब्रोमीन है तो आप उसी तरीके से जैसे मैंने अभी पीछे कैलकुलेट किया आप कर सकते हो। और if there are the case that there are more than one chlorine and bromine is present, then we can use binomial extension, that is a plus b raised to the power n, where a is signifying what? The natural abundance of lighter element, जैसे कि आपके पास हो गए Cl35, Br79, ये आपके पास लाइटर एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है नेचर में, ठीक है, अपने आइसोटोप के कंपैरिजन में। और बी जो होगा वो होगा नेचुरल अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप Cl37 एंड Br81। n इज द नंबर कि कितने आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। देन n इज इक्वल टू 1, अगर आपके पास मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन आपके पास एक ही अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आप इसको यहाँ पे पुट कर दो a प्लस बी रेज़ टू द पावर 1, so it will give you a plus b only, right? तो a आपका जो है वो m की पीक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो लाइटर आइसोटोप की थी तो इसीलिए हमने इसकी m की पीक मान ली, और b जो थी वो हेवियर आइसोटोप के लिए था तो m प्लस 2, तो मतलब टोटल कितनी पीक दे रहा है आपको, ये केस 2 पीक्स टोटल दे रहा है। वही अगर तुमने m की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखो इसे ध्यान से, तो इट विल बी गिविंग यू a प्लस b रेज़ टू द पावर 2, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहाँ टोटल आपके पास 3 पीक्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, दैट इज हाउ इट विल अकर, लेट्स सी इन द स्लाइड, राइट। तो ये आपके पास a स्क्वायर देगी किसकी पीक, m की, 2ab यहाँ पे देगा m प्लस 2 की, और b स्क्वायर यहाँ पे देगा m प्लस 4 की पीक, ठीक है। इसी तरह आपका n प्लस n इज इक्वल टू 3 के केस में है, यू कैन सी ओवर हियर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, so this is how it is going to occur, m plus 2 m plus 4 m plus 6, इस तरीके से आप याद रखोगे, राइट। so these are the way कि मतलब आपके पास उतनी पीक्स इंक्रीज होती जा रही है, जैसे आपके नंबर ऑफ आपके जो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे आपकी नंबर ऑफ पीक्स भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। so the more is the number of, more is the value of n, more is the peak, so number of molecular ion peak due to halogen is equal to n plus 1, ये फॉर्मूला बन गया कि molecular ion peak किसी भी हेलोजन की वजह से जो होगी वो आपको आएगी n प्लस 1 पे वैल्यू, ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसके केस में। सपोज आपके पास 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, तो उस केस में आपको पता, आपने बता दिया कि क्लोरीन 2 है, तो मतलब आपके क्या पास क्या होगा, हमने कैलकुलेट की थी अभी इंटेंसिटी, पीछे कैलकुलेट किया हमने क्लोरीन के केस में, कि अगर हेवियर आइसोटोप होगा तो उसकी सॉरी लाइटर आइसोटोप की इंटेंसिटी होगी 3, और आपके पास इंटेंसिटी रेशियो बी की हेवियर आइसोटोप की आ जाएगी 1, अभी पीछे जस्ट कैलकुलेट किया हमने पिछली स्लाइड में, ठीक है। अब देखो ये ए और बी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, ठीक है, बाइनोमियल एक्सटेंशन हमने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ टोटल क्लोरीन एटम इज 2, सो नाउ यू विल यूज दिस फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास टोटल 3 पीक्स आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो वो होंगी आपके पास कुछ इस तरीके से, m प्लस 2 m प्लस 4, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखनी सीरीज में m प्लस 2 m प्लस 4, राइट। सो दैट वुड बी इजी टू रिमेम्बर। देन आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे और आपके पास इंटेंसिटी रेशियो आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, ये आपके पास आएगी 3:2:1। अब देख लेते हैं इसको, जो मैंने पीछे आपको ग्राफ बताया था कि अगर 2 क्लोरीन वाला केस हम देख रहे हैं तो आपके पास इंटेंसिटी होगी 3:2:1। 3 किसकी होगी, आपके लाइटर आइसोटोप की, 1 किसकी होगी, हेवियर आइसोटोप की। तो देखते हैं इसी को, जस्ट लेट मी शो यू इन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, व्हेन देयर आर, या दैट इज द केस ऑफ 2 क्लोरीन। तो आप देख सकते हो m plus 2 m plus 4, this is how you are going to obtain the peaks, right। अगर Cl3 इंक्रीज हो जाएगा, आपने फिर से वो a plus b क्यूब का लगा देना, क्योंकि अब यहाँ पे n जो है वो 3 हो गया, ठीक है, n की वैल्यू 3 होगी क्योंकि क्लोरीन आपके पास 3 है टोटल यहाँ पे, तो आप पुट करोगे तो टोटल 4 पीक्स आ जाएंगी, और वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, m plus 2 m plus 4 एंड m plus 6। सिमिलरली आप सेम केस अप्लाई कर सकते हो ब्रोमीन में भी, आप Br2 और Br3 करके देखोगे, आपके पास इसी तरीके के ग्राफ मिलेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको अभी करवाया है इसी तरीके से अगर आपको आइसोटोपिक पीक्स का एज एग्जाम क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपको, तो आप क्या करोगे,
you will be attempting the definition. Then you will give the example related to it. कि आपके पास आइसोटोपिक पीक भी शो होती है, जैसे हमने मीथेन का केस लिया, इथेन का केस लिया अभी पीछे, वो आप बता दोगे. देन आप स्पेसिफिकली वो क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर आपको एग्जांपल लेके बोलते तो ये आपने एक्सप्लेन करने कि अगर एक ही क्लोरीन और एक ही ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो आपके पास इस तरह से 2 पीक्स आती हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो आप बाइनोमियल एक्सटेंशन लगाते हो, वो सारा एक्सप्लेन करोगे आप और ये ग्राफ भी बनाओगे. सो दिस इज योर होमवर्क to do the case of your BR2 and BR3, right? ये करो और yes, this too. So ये अगर आप समझ गए ना, it's very easy for you. So yeah, that's all about it. So yeah, thanks for watching and do like, comment, share the link, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. Thank you.